अस्सलाम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम डायटोमिक गैसेस की प्रॉपर्टीज को स्टडी कर रहे थे। इसमें हमने देखा कि अगर आप किसी भी एक डायटोमिक गैस को हीट अप करते हैं तो एक डायटोमिक मॉलिक्यूल जो है वो डिफरेंट टाइप्स की मोशन परफॉर्म करके उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। जब आप लो टेम्परेचर्स की बात कर रहे होते हैं देन देयर इज ओनली वन काइंड ऑफ मोशन व्हिच इज एसोसिएटेड विद ए डायटोमिक मॉलिक्यूल एंड दैट इज द ट्रांसलेशनल मोशन। और जब आप further temperature increase करते हैं उस diatomic gas का, then after reaching a certain temperature T rotational, आपकी rotational states जो हैं they get excited and the molecule starts performing the rotational motion as well. तो इसका मतलब है कि intermediate temperatures पे आपकी गैस एक डायटोमिक मॉलिक्यूल जो है ना सिर्फ वो ट्रांसलेट कर रहा होता है बल्कि ट्रांसलेट करने के साथ साथ वो रोटेट भी कर रहा होता है। तो जब आप फर्दर टेम्परेचर आप इंक्रीज करते जाते हैं एंड यू रीच ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1000 केल्विन तो वाइब्रेशनल मोशन जो है उस डायटोमिक मॉलिक्यूल का वो भी स्टार्ट हो जाता है। तो आज हम जो है वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल ऑफ ए डायटोमिक मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करेंगे। लास्ट टू लेक्चर्स में हमने जो ट्रांसलेशनल मोशन है उसको डिस्कस किया एंड देन in previous lecture we discussed about the rotational energy stable states of a diatomic molecule। और यहाँ पे हम मेनली जो इंटरेस्टेड है वो स्पेसिफिक हीट का एक्सप्रेशन निकालने के लिए निकालने में हम इंटरेस्टेड हैं। एंड सिंस वी आर यूजिंग द आइडियाज ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स तो सबसे पहले आपको पार्टीशन फंक्शन निकालना है और पार्टीशन फंक्शन के लिए आपको एनर्जी आइगन वैल्यूज का पता होना जरूरी है। सो जो कि अब हम बात कर रहे हैं वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स की डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की, तो हमें पता है कि एक डायटोमिक मॉलिक्यूल जो है बेसिकली इन विच यू हैव आपके पास दो एटम्स होते हैं विच आर बॉन्डेड टुगेदर विद ईच अदर विच आर बॉन्डेड टुगेदर, यानी एक अट्रैक्टिव पोटेंशियल है जो उन दोनों एटम्स को बांध के रखता है। ठीक है, तो जो आप जो जो आपके पास एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है इसको आप इसके वाइब्रेशनल मोशन को आप रिलेट कर सकते हैं टू द मोशन ऑफ ए हार्मोनिक ऑसिलेटर। सो टू ए गुड अप्रोक्सीमेशन जो है जो वाइब्रेशनल स्टेट है एक डायटोमिक मॉलिक्यूल की आर दोज ऑफ ए हार्मोनिक ऑसिलेटर। And we know that the energy levels of a one-dimensional harmonic oscillator, they are given by the expression En is equals to h cut omega n plus half, where n is a positive integer or zero. So once you have the information of the energy eigen values, you can find out the partition function using the expression summation n is equal to 0 to infinity exponential minus en over kbt, where en is equals to h cut omega n plus half. So you can evaluate this summation for different values of n. तो आप ओपन करें समीशन को, so for n is equal to 0 you will have exponential minus h cut omega over 2 kbt. Sorry, for n is equals to 1 you will have 3 by 2 here, so you will get exponential minus 3 by 2 h cut omega over kbt, and for n is equal to 2 you will have exponential minus 5 h cut omega over 2 kbt and so on. तो ये बेसिकली आपके पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज है which can be summed exactly. तो यहाँ पे आप you can take this first term common, so take this common as exponential minus h cut omega over 2 kbt, and you will left with 1 plus exponential minus h cut omega over kbt plus exponential minus 2 h cut omega over kbt so on. So this is a geometric series जिसका solution आपके पास बराबर होगा a is equals बराबर होगा a over 1 minus r, where a is this first term which is equals to 1 in this case, और r जो है वो that will be the difference between these successive terms which is equal to exponential minus h cut omega over kbt.
So the solution of this geometric series, the partition function will be equal to exponential minus h cut omega or 2 kbt divided by 1 minus exponential minus h cut omega over kbt. So again, हमें पता है जो partition function होता है it is temperature dependent. So we can again use the low and high temperature approximations to find out the expression in these two regions, and then from that partition function we can find out the thermodynamic properties in the low and high temperature regions. So now let's discuss the first case. Sorry, for high temperatures. So when the temperatures are high, आपकी जो equation 1 है, you will have uh, z is equals to 1 over exponential h cut omega over 2 kbt minus exponential minus h cut omega over 2 kbt. कि आप जो आपके पास ये टर्म है इसको आप नीचे लेकर आ रहे हैं, जब आप इसको नीचे लेकर आएंगे then you will get this expression. तो यहाँ पे हमने इक्वेशन 1 को रीअरेंज करके लिखा है. तो हम बात करें हाई टेम्परेचर लिमिट की, तो व्हेन द टेम्परेचर इज वेरी हाई दिस टर्म विल बी स्मॉल एंड अगेन दिस विल टर्म विल बी वेरी स्मॉल. तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं कि यू कैन ओपन दिस exponential, and that will be equal to 1 plus h cut omega or 2 kbt plus so on. एक्सपोनेंशियल की सीरीज आपने ओपन की है कि एक्सपोनेंशियल ऑफ x जो है वो बराबर होता है 1 plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial and so on. So similarly, second term को भी आप ओपन करें एक्सपोनेंशियल को, you will have a 1 minus h cut omega over 2 kbt plus 1. तो यहाँ पे हमने हायर ऑर्डर टर्म्स को जो है वो निगलेक्ट किया है क्योंकि हम हाई टेम्परेचर बात कर रहे हैं, एंड एट वेरी हाई टेम्परेचर्स दिस रेशियो विल बी वेरी स्मॉल, सो यू कैन निगलेक्ट द हाई ऑर्डर टर्म्स. ठीक है, तो आप जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये वन जो है इस वन से कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल बी लेफ्ट विद z is equals to 1 over 2 into h cut omega over 2 kbt. And you will have kbt over h cut omega. So this is the partition function at high temperatures. And once you have the partition function, you can find out all thermodynamic properties. And we know that the free energy is given by the expression F is equals to minus kbt log of z. So z आपके पास बराबर है kbt divided by h cut w. And from that you can find out the entropy by taking the derivative of free energy with respect to temperature. um, and after entropy you can find out the specific heat of the system by using the expression T is equals Cv is equals to T into partial S by partial T. इसको आप solve करेंगे तो you will find that specific heat at very high temperatures again is constant and is equals to the Boltzmann constant Kb. तो हायर टेम्परेचर्स पे जिस तरह से हमने देखा कि रोटेशनल मोशन के केस में भी जो स्पेसिफिक हीट थी वो कांस्टेंट थी और वो बराबर थी के बराबर थी. तो सिमिलरली हम देख रहे हैं कि जो वाइब्रेशनल मोशन है उस केस में भी हायर टेम्परेचर्स में आपकी जो स्पेसिफिक हीट है इट गिव्स अ कंट्रीब्यूशन ऑफ केबी टू द हीट कैपेसिटी ऑफ ए सिस्टम. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सेकंड केस की, द लो टेम्परेचर लिमिट. सो व्हेन द टेम्परेचर इज लो, आपकी जो इक्वेशन 1 है यू कैन keep that expression exactly. This is your equation 1 which is exponential minus h cut omega over 2 kbt divided by 1 minus exponential minus h cut omega over kbt. So from this you can find out again free energy, entropy, and then finally you can find out the specific heat of the system जिसमें हम interested है. तो यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि we can use two different ways to find out the specific heat. ठीक है, अगर आपको स्पेसिफिक हीट निकालने को कहा गया है तो आप इसी तरह से फ्री एनर्जी और एंट्रोपी कैलकुलेट करके आप स्पेसिफिक हीट निकाल सकते हैं, या आप डायरेक्टली
अगर आपके पास पार्टीशन फंक्शन आप कैलकुलेट कर चुके हैं तो पार्टीशन फंक्शन से यू कैन डायरेक्टली फाइंड आउट the average energy of the system, and from average energy you can find out the specific heat of the system, ठीक है, by using the expression partial u by partial t। तो वो बेसिकली आपके पास एक डायरेक्ट वे है स्पेसिफिक हीट निकालने का, जिसमें आपको इतनी लेंथी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। बट अगर आपसे फ्री एनर्जी एंट्रोपी निकालने को कहा गया है देन डेफिनेटली यू हैव टू यूज दिस वे। तो लो टेम्परेचर लिमिट में आप यहाँ पे प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल्स को यूज करते हुए आप एक्सप्रेशंस फाइंड आउट करेंगे एंट्रोपी और स्पेसिफिक हीट के। एंड व्हेन यू विल सॉल्व ऑल दिस मैथमेटिक्स देन यू विल find that specific heat at low temperatures जो है it is equals to h square omega square over kBt square into exponential of h cut omega over kBt divided by exponential h cut omega over kBt minus 1 whole square। अब चूंकि लो टेम्परेचर्स की बात करें तो इसका मतलब है when the temperature is low this ratio will be very high, and again similarly denominator में भी this ratio will be very high and exponential of very large number is a very large number। तो इसका मतलब है this one can be neglected because this is a very large number। तो डिनोमिनेटर में आपके पास एक्सपोनेंशियल ऑफ 2h कट ओमेगा ओवर kBt होगा। तो अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो यू विल बी लेफ्ट विद CV is equals to h कट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओवर kBt स्क्वायर with this expression, जो कि अगर आप इसको आप फर्दर ऊपर आप लेके जाते हैं तो you will have CV is equals to h cut omega square over kBt square into exponential minus h cut omega over kBt। तो यहाँ पे आप देखें कि आपके पास टेम्परेचर डिपेंडेंस जो है वो यहाँ पर भी आ रही है और इस एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में भी आ रही है, ठीक है। लेकिन दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट एट लो टेम्परेचर। तो इसका मतलब है कि व्हेन द टेम्परेचर इज लो so this will be a large number, this ratio will be a large number, और again exponential so इसका मतलब है ये भी आपके पास एक लार्ज नंबर होगा, but this is the exponential of this large number। इसका मतलब है कि this term will dominate। तो लो टेम्परेचर रीजन में आपके पास ये वाली जो टर्म है दिस विल डोमिनेट। सो यू कैन से दैट अगेन एट लो टेम्परेचर्स हीट कैपेसिटी जो है डाइज अवे एक्सपोनेंशियली, कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर लो कर रहे होते हैं आपकी जो हीट कैपेसिटी है वो इट गोज टुवर्ड्स जीरो एक्सपोनेंशियली, ठीक है। और अगर हम हाई टेम्परेचर रीजन पे बात करते हैं तो हम एक्सप्रेशन ऊपर निकाल चुके हैं जिसमें हमने देखा है कि हाई टेम्परेचर रीजन में आपकी स्पेसिफिक हीट जो है वो कांस्टेंट रहती है। तो इनको अगर हम कंबाइन करते हैं और प्लॉट करते हैं स्पेसिफिक हीट को एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो हाई टेम्परेचर पे जो स्पेसिफिक हीट है वो बराबर है आप इट इज कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू kb, whereas in the low temperature region जो कि आपके पास ये रीजन है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक्सपोनेंशियली आपकी जो स्पेसिफिक हीट है वो डिके हो रही है जैसे जैसे आप टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करते जाएंगे, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑलमोस्ट ये सिमिलर एक्सप्रेशन है जिस तरह का सिमिलर ट्रेंड है जिस तरह का आपने रोटेशनल मोशन के केस में देखा कि वहां पर भी आपके पास जो हाई टेम्परेचर्स पे स्पेसिफिक हीट थी वो कांस्टेंट थी और केबी के बराबर थी, जबकि लो टेम्परेचर में वहां पर भी वो एक्सपोनेंशियली जो है वो डिकेइंग बिहेवियर था, उसमें एक्सपोनेंशियली डाई हो रही थी आपकी स्पेसिफिक हीट। सिर्फ एक डिफरेंस वहां पे आपके पास ये आता है कि वहां पर अगर आप देखें आप इसको अगर लास्ट लेक्चर से कंपेयर करेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर तो आप देख रहे हैं कि स्पेसिफिक हीट आपके पास इंक्रीज हो रही है एंड देन आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन टेम्परेचर आपके पास कांस्टेंट हो जाती है और फर्दर सेम रहती है विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, उसमें कोई टेम्परेचर डिपेंडेंस नहीं रहती, कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। लेकिन जब आप इसको रोटेशनल मोशन से कंपेयर करते हैं तो उस केस में आप देखते हैं कि ये जब आप लो और हाई टेम्परेचर रीजन को कंबाइन करते हैं तो उसमें स्लाइट सा एक हम्प आता है कि आपके पास एक स्लाइट इंक्रीज आता है एंड देन आपके पास स्पेसिफिक हीट जो है वो कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो वहां पर आप बेसिकली इवेलुएट करते हो उस एक्सप्रेशन को
अगर आप उसको कंप्यूटर में इवेलुएट करने की कोशिश करें और आप डिफरेंट एल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें उसमें, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर की, और आप बहुत लार्ज नंबर्स पे जाएं, तो आप देखेंगे कि आपको उसमें एक स्लाइड सा हम्प जो है वो भी मिलता है, जो कि आपको इस केस में नजर नहीं आता। तो हम देख रहे हैं कि जब हम टेम्परेचर व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द डायटोमिक गैस इज वेरी वेरी हाई, तो आपकी जो वाइब्रेशनल मोशन है उसके थ्रू जो है एक डायटोमिक मॉलिक्यूल जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। सो अगेन लो टेम्परेचर्स पे जो बिहेवियर है आपकी स्पेसिफिक हीट का, इट इज प्रोपोर्शनल टू एस माइनस एच के ओमेगा ओवर के बी टी, whereas at high temperature the specific heat is constant and is equals to kb. तो मजीद बढ़ते हैं जी आगे। हमने अब ये देखा कि सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट ए डायटोमिक मॉलिक्यूल एट वेरी हाई टेम्परेचर्स, तो इसका मतलब है कि इस डायटोमिक मॉलिक्यूल, ये डायटोमिक मॉलिक्यूल जो है आपके पास वो तीनों तरह के मोशन जो है वो परफॉर्म कर रहा है, कि ना सिर्फ वो ट्रांसलेट कर रहा है बल्कि रोटेट करने के साथ साथ वाइब्रेट भी कर रहा है। तो इसका मतलब है जो सारी भी आपकी ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट्स हैं, दे आर ऑल एक्साइटेड। तो जो टोटल एनर्जी होगी आपके इस डायटोमिक मॉलिक्यूल की, दैट विल बी इक्वल टू, दैट विल बी द सम ऑफ द ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल एंड द रोटेशनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इसका मतलब है कि एट वेरी हाई टेम्परेचर्स आपके पास ये टोटल एनर्जी है। नाउ यू कैन राइट द पार्टीशन फंक्शन ऑफ दिस कंप्लीट सिस्टम बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी आइगन वैल्यू। ठीक है, जिसमें आपके पास डिफरेंट क्वांटम नंबर्स हैं करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट मोशंस। ठीक है, तो जब आप अगेन एक्सप्रेशन यूज करते हैं partition function का, now you will have 5 different summations, uh, uh, and every summation has its own quantum number। और तो इस केस में क्या होता है, जब आप एनर्जी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जो कि बराबर है इस इन तीन इस एनर्जी के, जिसमें आपके पास तीन डिफरेंट तरह की एनर्जीज हैं जो कि ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल, रोटेशनल है। तो इसका मतलब है कि आप और हर जो आइगन वैल्यू है बेसिकली इट्स अ सम ऑफ टर्म विद इट्स ओन क्वांटम नंबर्स। तो इसका मतलब है कि आप इन डिफरेंट क्वांटम नंबर्स को आप प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, आप सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके मतलब एंड व्हाट वी विल गेट देन दैट इज जो टोटल पार्टीशन फंक्शन है वो बराबर होगा z translational के into z vibrational into z rotational, so that will be equal, that will be the total partition function of this diatomic molecule at very high temperature। और एक और फर्दर मैं इंफॉर्मेशन ऐड करता चलूं कि यहाँ पे हम बेसिकली जो कुछ फर्दर आपकी स्टेट्स पॉसिबल हो सकती हैं इलेक्ट्रॉन की वजह से, उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। फर्दर स्टेट्स कौन सी पॉसिबल हो सकती हैं? देयर कैन बी स्टेट्स रिलेटेड टू द स्पिन ऑफ दैट मॉलिक्यूल, दैट एटम। ठीक है, कि अगर आपके पास एक पर्टिकुलर एटम एक सर्टेन स्टेट में मौजूद है, देन यू विल हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ स्पिन अप एंड स्पिन डाउन स्टेट्स एज वेल। ठीक है, तो वो एडिशनल स्टेट्स हैं जिसमें आपका सिस्टम जो है वो मौजूद हो सकता है। ठीक है, तो अगर तो आप वो भी कंसीडर करते हैं, तो इसका मतलब है कि वो एनर्जी आइगन वैल्यूज भी आपको एनर्जी के एक्सप्रेशन में आपको ऐड करनी चाहिए। ठीक है, बट फॉर द टाइम बीइंग यहाँ पर हम जो स्पिन स्टेट्स हैं उनको हम इग्नोर कर रहे हैं। सो पार्टीशन फंक्शन चूंकि बराबर है प्रोडक्ट ऑफ these three terms, जो कि z translation into z vibration into z rotational है, तो free energy which is given by F is equal to minus kbt log of z, or log of this product will you will have in the form of this sum. So free energy will be equal to minus kbt log of z translational minus kbt log of z vibrational in minus kbt
लॉग ऑफ जी रोटेशनल। ये आप यहाँ पे देख रहे हैं कि फ्री एनर्जीज जो है वो बेसिकली आपकी ऐड होंगी इस टोटल सिस्टम की। सो कंक्लूजन क्या है कि हम जब हम टोटल एनर्जी की बात करते हैं एट वेरी हाई टेम्परेचर्स, तो पार्टीशन फंक्शंस मल्टीप्लाई होते हैं, फ्री एनर्जीज, एंट्रोपीज एंड हीट कैपेसिटीज जो हैं वो एड अप होती हैं। ठीक है, सो अगेन दोबारा से मैं समराइज कर रहा हूँ कि पार्टीशन फंक्शंस आप मल्टीप्लाई करते हैं, इंटरनल एनर्जी, स्पेसिफिक हीट जो है आप इन तीनों डिफरेंट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की जो है वो आप ऐड करते हैं। सो समरी की तरफ आते हैं। समरी में ये है कि एट वेरी लो टेम्परेचर्स जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ दैट मॉलिक्यूल, और जो ट्रांसलेशनल स्पेसिफिक हीट की वैल्यू है वो हमें पता है कि वो कांस्टेंट होती है और बराबर होती है 3/2 के बी के। और ये हम बात कर रहे हैं वेरी लो टेम्परेचर्स की, of the order of less than 10 Kelvin. और जब टेम्परेचर जो है वो बराबर हो जाता है ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 केल्विन, तो आपका जो रोटेशनल एनर्जी स्टेट्स हैं दे गेट एक्साइटेड, और मॉलिक्यूल जो है वो रोटेट भी करना स्टार्ट कर देता है। एंड सिमिलरली जब आप फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं और इंक्रीज करते करते आप यू रीच of the order of 1000 Kelvin, then vibrational states get excited and system starts to vibrate as well. तो इसका मतलब है कि at very high temperatures you will have a translational, rotational and vibrational motion as well. तो अगर इन तीनों एक्सप्रेशन को तीनों एनर्जीज को या स्पेसिफिक हीट के एक्सप्रेशंस को अगर मैं ऐड अप करता हूँ for a diatomic molecule at very high temperatures, तो लो टेम्परेचर रीजन में आपके पास जो स्पेसिफिक हीट है एक diatomic molecule की, that will be equal to 3/2 kb, and which is a constant. So at very low temperatures आपके पास जो स्पेसिफिक हीट है वो कांस्टेंट रहेगी जो कि बराबर होगी 3/2 kb के। And similarly, after reaching a certain temperature T rotational, which is of the order of 10 Kelvin, rotational energy states will get excited, and the system will absorb energy in the form of the rotational motion as well, जिसमें हाई टेम्परेचर पे आपके पास जो स्पेसिफिक हीट है वो कांस्टेंट होती है, एंड इट गिव्स अ कंट्रीब्यूशन ऑफ के बी टू द हीट कैपेसिटी। तो 3/2 के बी आपके पास पहले थी, के बी आपके पास रोटेशनल मोशन की वजह से आई, तो लिहाजा इसका मतलब है कि जो टोटल एनर्जी होगी एट दिस पॉइंट विल बी इक्वल टू 5/2 के बी। एंड सिमिलरली व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर फर्दर and you reach of the order of 1000 Kelvin, then vibrational states get excited, and again you will have a contribution of kb to the heat capacity of the system। इसका मतलब है कि 5/2 में फर्दर kb ऐड होगा आपका हीट कैपेसिटी में वाइब्रेशनल मोशन की वजह से, so the total heat capacity of a molecule at very high temperature will be equal to 7/2 kb. So that's it for दिस डायटोमिक मॉलिक्यूल के। जब आप डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात करते हैं एट वेरी हाई टेम्परेचर, तो आपको ये तीनों मोशंस को जो है वो कंसीडर करना है। ठीक है, तो आपके पास डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस जो है वो आ सकते हैं कि अगर आपके पास एक डायटोमिक मॉलिक्यूल का क्वेश्चन आता है और जब मैं आपके पास सिर्फ लो टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि इवन इट इज ए it can also have the rotational and vibrational states as well, but since we are talking about the low temperatures, तो उस केस में आपके पास सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन होगा। ठीक है, देखो इसका मतलब है कि जब तक आप 10 केल्विन से बिलो लिमिट में है, देन दिस डायटोमिक मॉलिक्यूल विल ओनली परफॉर्म द ट्रांसलेशनल मोशन, और जब आप 10 केल्विन और 100,000 केल्विन की रेंज में है, तो आपके पास रोटेशनल मोशन भी जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, और एट वेरी हाई टेम्परेचर जो है वो वाइब्रेशनल मोशन भी स्टार्ट हो जाएगा। या अदर वे अराउंड हम बात करें कि जब हम टेम्परेचर डिक्रीज करते आएंगे डायटोमिक गैस का फ्रॉम वेरी हाई टेम्परेचर्स, तो जो सबसे पहले स्टेट्स जो हैं
जो फ्रीज होंगी वो आपके पास वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट्स हैं वो फ्रीज, एंड देन फर्दर लोअरिंग टेम्परेचर करने से आपके पास जो रोटेशनल स्टेट्स हैं वो फ्रीज होना शुरू हो जाएंगी, एंड देन एट लो टेम्परेचर्स आपके पास ट्रांसलेशनल स्टेट्स जो हैं वो फ्रीज होना शुरू हो जाएंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे पार्टीशन फंक्शन, सॉरी, इक्वी पार्टीशन थ्योरम की। इक्वी पार्टीशन थ्योरम बेसिकली जब आपके पास इन्वेंशन नहीं हुई थी क्वांटम मैकेनिक्स की, तो क्लासिकली आप किस तरह से इस स्पेसिफिक हीट कर्व को एक्सप्लेन करते थे, एंड that we will deal with using the equipartition theorem. So thank you. That's it for today's lecture. Allah Hafiz.